السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال اینڈ ٹوڈے آئی ایم لائیو فرام اسلام آباد. جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں دے نو دیٹ آئی واز ہیئر فار دا پاکستان ڈے پریڈ جو کہ ریسکیجول ہو گئی. سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں تیزی سے پھیلتی ہوئی تھرڈ ویو کورونا کی، اس کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کروں تو 3260 لوگوں میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے. And that takes up the positive cases to a total number of about 34,000. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے صرف 24 گھنٹوں میں 72 لوگوں کی یعنی 72 لوگوں کے اموات پاتے ہوئے صرف 4 بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے نوٹس کیا جا رہا ہے دوبارہ اسٹرکٹ SOPs کی ضرورت ہے. اگر ہم یہاں کے جو ڈیسیژنز آنے کی بات کریں تو ہفتے میں 7 میں سے 2 دن کو مینڈیٹری سیف ڈیز یا کلوز ڈیز کی بات کی جا رہی ہے. I'm staying here at a local hotel جس کے بارے میں سیٹرڈے اینڈ سنڈے اگر آپ اس ہوٹل میں رہ نہیں رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ انٹری ہونی ہے. And I think similar cases have been taken. صوبائی ڈسکریشن ہے اس کے اوپر کہ لوگ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں بھی کئی اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق کر دیا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ٹیسٹنگ کے جو نمبرز اور پازیٹیوٹی ریشیوز ہیں اس کے مطابق، کیونکہ اوبیسلی سب سے زیادہ ٹیسٹنگ اور اس کو کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے. اسلام آباد کے نمبر سب سے زیادہ ہمیں فائدے ہیں، تو احتیاط لازمی ہے. روزمرہ زندگی اسی طرح چل رہی ہے. آفیسز کے لیے انسٹرکشن پین ہے کہ 50% اپنی اٹینڈنس پہ آ جائیے، بٹ یو مسٹ پے ٹو دیٹ. اس پر جتنے لوگ اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں پلیز گیٹ دیم ویکسینیٹڈ. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. 1166 پہ ڈائل کیجیے، ان کا شناختی کارڈ نمبر بھیجیے اینڈ میک شیور کہ جو ان کی سینٹر ڈیسائڈ ہوتا ہے وہاں پہ لے ہیں. پنجاب بھر میں 50 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی اناکولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بڑا اہم قدم تھا. اگین لوکنگ ایٹ دی ریپڈلی انکریزنگ نمبرز. اب ذرا آ جاتے ہیں جی اس ایشو کے اوپر جس کے لیے میں یہاں آئی تھی. پاکستان ڈے کا آپ نے کل ہمارا اسپیشل پروگرام دیکھا. اٹ واز آل اباؤٹ کہ ہمارے لیے یہ دن اہم کیوں ہے اینڈ واٹ مور کین وی ایکسپیکٹ فرام اٹ. لیکن ہمارے ملک کے ہماری ریاست کے لیے ایک بڑا اہم دن ہوتا ہے جس کو ہم کمیموریٹ کرتے ہیں پریڈ کے ساتھ. ویسے جو باقی چیزیں تھیں معمول کے مطابق چلی، دارالحکومتوں میں 21 اور دارالحکومتوں اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی اور اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز کیا گیا. خصوصی دعائیں مانگی گئی پاکستان کی سلامتی کے لیے مساجد میں. اس کے علاوہ پریزیڈنسی میں جو گنبد امتیاز کا ستارہ امتیاز کی جو اسپیشل سیریمنیز تھی وہ ہوئی. اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومتوں میں گورنر ہاؤس میں بھی سملر تقریب کا انعقاد کیا گیا. کئی بڑے اہم اس میں لوگوں کو خاص طور پر شوبز پرسنالٹیز کی بات کی جائے تو ہمایوں سعید کو، علی ظفر کو، بشرا انصاری صاحبہ کو، سلطانہ صدیقی صاحبہ کو، اس کے علاوہ ریشم کو بھی تمنا امتیاز سے نوازا گیا. اس کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے ایک رپورٹ، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایوان صدر اسلام آباد میں سول اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد. صدر مملکت نے صادقین نقوی مرحوم کو فن مصوری، ادیب، شاعر اور دانشور ڈاکٹر جمیل خان جالبی مرحوم اور نامور شاعر احمد فراز مرحوم کو ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا. پروفیسر سید شاکر علی کو فن مصوری میں نشان امتیاز سے نوازا گیا. صدر مملکت نے صوفیانہ موسیقی کی دنیا میں منفرد مقام رکھنے والی آبدہ پروین کو فن گلوکاری میں نشان امتیاز دیا. سید فاروق کیسر کو فن اور پتلی تماشے کے شعبہ، سلطانہ صدیقی کو فن اور اداکارہ، بشرا انصاری کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. ڈاکٹر آصف محمود جا کو خدمات عامہ میں ہلال امتیاز دیا گیا. بریگیڈیئر رانا عرفان شکیل رامے اور لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز کو خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز ملا. ڈپٹی ڈائریکٹر ISI نوید صادق کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا. مہر محمد یاسر شہید اور سپاہی اختر خان شہید، ملک سردار خان، ملک حیات اللہ شہید، سید جواد قمر اور محترمہ صفیہ شہید کو شجاعت کے اعتراف. کورونا وبا کے دوران رحلت کرنے والے ڈاکٹر اسامہ ریاض شہید کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا. رانا طارق جمیل.
ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل اور روت دینی لیکر ڈال کو خدمات پاکستان کے شعبہ، معروف اداکارہ ریشم، اداکار ہمایوں سعید اور گلوکار علی ظفر کو صدارتی ایواز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریسیپیز سے، کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہو جائے، بہت سارے ادارے اگر آپ کو پیچھے پوچھیں تو اس دا ہائیسٹ آف پاکستان، تو ایک طرح سے ان کی خدمات کا ان کی چیز کا اعتراف ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سرمایہ کے ساتھ ساتھ پریڈ میں بھی ایسے جو نامور پاکستانی توانائی ٹیلنٹس کو پاکستان کے لیے مختص کیا ہے، اس کو سرو کیا ہے، تو وہ یقیناً ان کو بھی اکنالج کیا جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ٹیریٹریز کے جو 25 کو ہو رہی ہے، تو اس کے اندر پرائڈ آف پرفارمنس انکلوژر کیا ہے، پرائڈ آف پاکستان انکلوژر کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی چھوٹے سے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور بزنس جرنلسٹ حسان خاور، اور بڑی امپورٹنٹ ایشو آج ہم نے ان سے ڈسکس کرنی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے۔ اگر ہم 2008، 2013، 2018 کی رپورٹس IMF کی نظر ڈالتے ہیں تو وہ تھرو آؤٹ بات کرتی رہی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کی، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے، ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ الیکشن سے پہلے بہت اگر اسپینڈنگ ہوتی ہے پہلے ووٹرز کو رجھانے کے لیے، اور پھر کئی ایسی اسکیمز کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ حکومت کے لیے ناگزیر ہو جاتی ہے۔ یہ رپورٹ یہ سجیسٹ کرتی ہیں، اور حال ہی میں بھی IMF نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومس ہو کے یہ ڈیسیژن سے حکومت سے پریشر نہیں لینا چاہیے۔ حسان، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر دس مارننگ۔ یہ ایشو اتنا اہم، اتنا پیوٹل ہے، لیکن تھوڑا سا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمیشہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اور اسٹرکٹ ریگولیٹر کے طور پہ دیکھا جاتا رہا ہے۔ اگر ہم 2008 کی ریسیشن کی بات کریں، بینکس ان پاکستان ڈڈ ناٹ کولیپس، اور اس کی بہت بڑا کریڈٹ دیا جاتا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو۔ اس کے علاوہ the way they have gone after the telcos، موبائل بینکنگ وقت کی ضرورت ہے، ڈیجیٹل پیمنٹس وقت کی ضرورت ہے، لیکن ٹیرر کرائم کو، باقی چیزوں کو ان کی نیوزز کو ٹائٹن اپ کرنے میں they have been a very strong regulator۔ تو پھر ان کی اٹانومی پہ سوالیہ نشان کیوں؟ جی سدرا، شکریہ۔ دیکھیے، اسٹیٹ بینک کی آپ نے بالکل یہ بات تھی کہ ان کا جو ریگولیٹری فنکشن ہے، جہاں پہ وہ بینکوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، فائنینشیل مارکیٹس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، موبائل بینکنگ جیسی چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ بینک کا کردار کافی اسٹرانگ ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے۔ یہ جو آج کل کی کنٹروورسی چل رہی ہے، یہ نئی امینڈمنٹس کے حوالے سے ہے، جو اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ویزا وی منسٹری آف فائنانس پہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کو قرضہ دے گا، کیا وہ انٹرسٹ ریٹس کو سیٹ کرنے سے پہلے حکومت کی بات سنے گا؟ اور ہمارے ملک میں ٹریڈیشنلی یہ ہوا ہے کہ چاہے ہمارے قانون میں پہلے بھی اسٹیٹ بینک کافی آٹونومس تھا، ہمارے جو سیکرٹری فائنانس ہوتے ہیں، جو منسٹر آف فائنانس ہوتے ہیں، وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے اوپر کافی انفلوئنس رکھتے ہیں، اور جنرلی گورنر کو ان کی بات سننی پڑتی ہے۔ اور IMF بڑے عرصے دراز سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چینج کریں اور اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کریں، تاکہ وہ مانیٹری پالیسی ان کے انفلوئنس سے آزاد ہو کے سیٹ کر سکیں، اور حکومت کے پاس بھی قرضہ لینے کی ایک ان لمیٹڈ ونڈو نہ اوپن ہو۔ تو یہ امینڈمنٹس وہ ہیں جو اس سلسلے میں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، اور قرضہ لینے کی جو مد ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی گزشتہ حکومتوں پہ یہ الزام تھا کہ وہ لارج اسکیل فائنینشیل اسکیل کے جو پروجیکٹس تھے ان کو چلانے کے لیے قرضہ لے رہے تھے۔ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ قرضوں کو سروس کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں، یا کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے، فوڈ اور دوسری کموڈیٹیز کی جو شارٹیجز ہو رہی ہیں اس کے لیے وفاقی حکومت قرضہ لے رہی ہے۔ اس وقت تو ہمارے سامنے کووڈ کے مسائل ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ان اے کنٹری لائک آورز، جہاں پہ ٹیکسیشن کے معاملوں پہ، پرائسز کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ بھی بڑے اسٹرانگ ڈیسیژنز لے لیتی ہے، ہاؤ ول اٹ آل ورک؟ یہ اکویژن پھر اتنی نئی ہوگی، آپ اٹانومی اگر گرانٹ کرتے ہیں، ول دیٹ ناٹ کریٹ مور کانفلکٹ؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کانفلکٹ ہیلدی رہے تو ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ نے سدرا بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ میں کووڈ کی وجہ سے بہت خرچہ ہوا اور چیزیں ہوئیں، اور اس لیے حکومت خسارے میں ہے اور ہمیشہ سے خسارے میں رہی ہے. اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس قرضہ لینے کی آپشنز ابھی بھی رہیں گی. بات صرف یہ ہے کہ کیا وہ قرضہ حکومت بینکوں سے لے گی یا اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ کے لے گا. اور اگر آپ نوٹ چھاپنے والی ونڈو اوپن رکھیں تو اس سے ظاہر ہے کہ مہنگائی میں اضافہ رہتا ہے اور ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا. اسٹیٹ بینک ابھی بھی سیکنڈری مارکیٹ کے اندر حکومت کے انسٹرومنٹ اٹھا سکے گا لیکن ڈائریکٹلی حکومت سے نہیں خرید سکے گا. یہ بیسیکلی اس لا کے اندر ہے اور میرے خیال میں یہ ہیلدی بات ہے کیونکہ یہ حکومت کو مجبور کرے گی ان دا لانگر رن کہ وہ اس قرضے کو کم کرے. لیکن ابھی امیڈیٹلی ظاہر ہے کہ جو حکومت کے اوپر جی آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیے ابھی حکومت کے اوپر قرضہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا اور یہ جگہ جگ نہیں ہو سکے. اچھا، یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پرائس اسٹیبلٹی آئے گی یا وہ زیادہ ایکٹیولی خود مانیٹر کر سکتے ہیں مانیٹری پالیسی آف پاکستان کو، ان سجیشن کے بعد منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک آف فائنانس کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ کتنا خوش آئند سمجھ رہے ہیں یا بہرحال پش بیک؟ آپ کی کلاس کیا ہے؟ دیکھیے انیشلی تو ظاہر ہے کہ منسٹری آف فائنانس ذرا اس کے بارے میں اسکیپٹیکل تھی جو اطلاعات ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا، آئی ایم ایف سے ہم نے اگری کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے. تو اب فائنلی منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک ایک ہی پیج پہ تھے، اسی لیے یہ جو ترامیم ہے یہ کیبنٹ کو پیش کی گئی اور کیبنٹ نے اپروو کی. لیکن لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر سدرا کافی رد عمل آیا. کچھ جرنلسٹ کی طرف سے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ خود مختاری ہونے جائے گی تو یہ کوئی نئی خود مختاری ہے اور یہ حکومت پاکستان سے بھی زیادہ پاورفل ہو جائے گا اسٹیٹ بینک. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، لیکن بہرحال ابھی کچھ دنوں کے اندر اس میں بہت کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے اور بہت بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. جو آپ نے خود کہا کہ پاورفل ہو جانا، آئی تھنک اٹ از مور لائک اے پاور چیک فار دا گورنمنٹ، یعنی تاکہ ان کی ایک ان اینڈیڈ اسپینڈنگ کو بھی ایک طرح سے پش بیک مل سکے، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے. تو یہ موجودہ حکومت تو بات ہی اکاؤنٹیبلٹی کی کرتی ہے، بلکہ دس ہیز بین اے گریٹر چینج ان دا ڈسکورس آف پاکستان. یعنی جتنی ڈیموکریٹک بات کی جاتی ہے اس میں تو ایبسولوٹ پاور کو چیک کرنے کا ہی عمل جاری ہے کہ اداروں کو اور مستحکم بنائیں، ان کو زیادہ اسٹرانگ بنائیں. تو پھر یہ رد عمل کیوں؟ دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک فسکل کوآرڈینیشن بورڈ تھا جس کو منسٹر آف فائنانس اس میں جاتے تھے اور سیکرٹری فائنانس، اور وہاں پہ وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کو انفلوئنس کر سکتے تھے، تاکہ ان کا خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا رہے اور اکانومی سلو ڈاؤن ہو. اور اس کا اشارہ غالباً یہ کووڈ سے پہلے کی پالیسیز پہ ہے، جب لوگوں کا خیال تھا کہ اسٹیٹ بینک کو ریٹس کم کرنے چاہیے تھے، لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام آیا تھا اور اسٹیٹ بینک بڑھا رہا تھا. اس بات کے اندر دیکھیے اس حد تک تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مہنگائی ہے وہ کاسٹ پشٹ ہے، وہ سپلائی ڈسرپشنز کی وجہ سے ہے، اور اسٹیٹ بینک ان انٹرسٹ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکتا. اور ایسی صورتحال میں کہ اگر ایسی مہنگائی ہو اور اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا شروع کر دے تو یہ اوور ریئیکشن ہوگا. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اس ڈائریکشن میں بات چلے گی تو یہ ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا ملک ایک ڈائریکشن میں چل رہا ہو اور اسٹیٹ بینک جتنا بھی آٹونومس وہ ایک اور ڈائریکشن میں چل رہا ہو. آخر وہ اسی ملک کا پارٹ ہے. اس وقت بھی پارلیمنٹری اوور سائٹ کی اس کے اندر کلازز ڈالی گئی ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے سال میں ایک یا اس سے زیادہ دفعہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنی پرفارمنس بتانی ہے. تو بہرحال اس قانون کے اندر یہ پروویژنز ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک تبدیلی ہے اور کیونکہ ہمارے جو گورنر ہیں وہ پہلے آئی ایم ایف سے آئے ہیں، تو لوگوں کو شاید یہ خیال ہے، جو کانسپریسی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں، کہ شاید آئی ایم ایف ٹیک اوور کرنے لگا ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن حسان، ایک اور بڑا اہم نقطہ یہاں پہ آتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی شاید اقتصادیات سے، معیشت سے وہ گرپ نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو دورست اس کے نتائج ہوں گے کہ ایک تو گورنمنٹ اسپینڈنگ کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، چیک رکھا جائے گا، انفلیشن اور مہنگائی کو ان دا لانگ رن نیچے لایا جائے گا. تو پیپل ول بی کوشچننگ اٹ. آپ نے جس طرح بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم ملک میں کموڈیٹیز کی پرائسز، کراچی اور لاڑکانہ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پرائس دی گئی ہے اس سے 94% زیادہ سے وہ کموڈیٹیز بک رہی ہیں، اور اس کا مین مسئلہ سپلائی کی طرف سے.
Do you not feel that we are also setting up the whole decision, या ये reforms या ये act अगर आता है, we are already setting up the governor, I mean the State Bank of Pakistan up for failure. कि अगर हम कहें कि ये होने के बाद prices में stability आ जाएगी, import bill नीचे आ जाएगा, यानी हम already इतनी absolute statements में बात करते हैं कि जब वो नहीं हो पाता 6 महीने के बाद, then people get dejected. जी देखिए, ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की सीधा बात हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक नंबर होगा जिसको चेस करेंगे। एक टारगेट रेंज होती है, स्टेट बैंक कोशिश करता है उसको रीच करने की, और हर दफा ये नहीं होता कि उस रेंज को आप रीच कर जाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये बड़ी ऑब्वियस ये है कि अगर सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से कीमतें बढ़ेंगी, या आर्मी मंडी में अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी, तो उसमें बहुत कम किरदार स्टेट बैंक कर सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, तो जाहिर है कि स्टेट बैंक को फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये कुछ अर्सा चलेगा तो लोगों को अंदाजा होगा कि इसका बैलेंस क्या है और स्टेट बैंक इसमें कितना इफेक्टिव है। अच्छा, ये एक और अब इसके अंदर, इस मत के अंदर ये डिबेट आ गई है, जिससे आपने आर्टिकल भी लिखा है, एंड यू नो वी जस्ट हैड अ एक्सचेंज अबाउट इट। लेकिन ओवरऑल जो कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अब महंगाई के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है, एंड दे आर गोइंग टू लीव नो स्टोन अनटर्न कि पाकिस्तान में महंगाई नीचे आए। इसके लिए आप क्या समझते हैं? अभी तक जो मीडियम टर्म में पॉलिसीज बनी है, फिर भी अगेन बैंग इन द मिडल ऑफ द थर्ड वेव, तो हमारे पास लॉकडाउन की गुंजाइश बाकी नहीं है, आगे रमजान भी है, महंगाई मजीद बढ़ते हुए देख रहे हैं हसन, या वाकई हुकूमत अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगी? देखिए, महंगाई की कई सोर्सेज हैं जो इस वक्त हम देखने में आ रही हैं। जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर जाहिर है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसके अंदर हमारे जो सब्सिडी के निज़ाम है बाज़ दफ़ा वो प्रॉब्लम करते हैं। वहाँ पर हुकूमत ने, आपको पता है, पिछले 1-2 सालों में इंक्वायरीज तो कराई हैं, लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई खातिर ख्वाह तब्दीलियाँ नजर में नहीं आई। दूसरी तरफ ये है सिद्रा कि अगर आप ऑयल की प्राइस देखें तो वो आलमी मंडियों में बढ़ रही है, उसकी वजह से भी महंगाई आ रही है। बिजली की कीमतें जो है वो हमने अपने सर्कुलर रेट को कम करने के लिए बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से भी महंगाई आ रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले कुछ माह के अंदर महंगाई बढ़ने का इम्कान है, ये ऊपर रहेगी। जो कोई इन्फ्लेशन है वो उतनी नहीं बढ़ रही क्योंकि डिमांड अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अभी कंट्रोल में नहीं आएंगी और आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन अगले कुछ माह में बढ़ने का इम्कान है मजीद। तो आपका बिजनेसेस को क्या मशवरा होगा ना, अगर ये हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे पास कई तरह के लोग हैं, और कल मैं देख रही थी, सम ऑफ द नंबर्स आर अलार्मिंग। अगर हम सिर्फ पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं हसन, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ साल 2020 में 40 नए बिलियनियर्स को वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में शामिल किया गया है भारत की तरफ से, एंड दे हैव एक्चुअली accumulated that kind of capital and success। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे जो डेटा मौजूद है, कहा जा रहा है कि 57% ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ द प्रोफेशनल्स आर स्कैर्ड कि उनका जो रोजगार है, उनका जो पेशा है वो खत्म हो जाएगा, एंड दे विल बी बैडली इम्पैक्टेड बाय कोविड। हमारे पास ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन इस तरह के खदशात आई एम श्योर पाकिस्तानी एनवायरमेंट में भी होंगे, एंड पीपल आर इक्वली वरीड। तो क्या मशवरा होगा? ये रिस्क लेने का वक्त है, सेविंग्स करने का वक्त है, सादगी से चलने का वक्त है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये कि हमारे मुल्क में भी काफी रिसर्च हुई है और काफी रिपोर्टें हैं। अभी डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल ने कुछ पेपर्स लिखे हैं और ये बताया है कि कोविड-19 से कैसे बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए। देखिए, हमारी इकोनॉमी जो है अब रिकवरी की तरफ है, हमारी ग्रोथ पिकअप हो रही है। आपने देखा कि स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी दी उसके अंदर उन्होंने अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन भी ऊपर कर दी है। तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, हमारे लिए भी अच्छा स्टेबिलिटी का टाइम आ रहा है। टेक्सटाइल मिल्स वाले ये कह रहे हैं, स्पेशली स्पिनिंग साइड के ऊपर उनका कारोबार अच्छा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन की साइड पे चीजें अच्छी जा रही हैं, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उसकी जो पॉलिसी उसके रिजल्ट्स आ रही हैं, जो ऑटो पॉलिसी आपने देखा कि गाड़ियों की फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो मेरे ख्याल में कि हम बहरहाल एक अच्छे टाइम की तरफ जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ रिकवर कर रही है और इंशाल्लाह बेहतरी आने के इम्कानात हैं अगले कुछ माह में और एक साल में। And your suggestion to businesses would be to expand, to take risks, or to let the environment settle a little bit? देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। इस वक्त जो पहले 1-2 साल पहले की अनसर्टेनिटी थी वो आज मौजूद नहीं है। IMF का प्रोग्राम है, रिफॉर्म्स की डायरेक्शन बड़ी क्लियर है। बिजनेस को चाहिए होती है कि एक सर्टेनिटी हो। मेरे ख्याल में मार्केट में इस वक्त वो सर्टेनिटी है और ये टाइम है इन्वेस्ट करने का और ये टाइम है आगे जाने का।
Thank you so much, Hassan. लेकिन the third wave again is bringing a lot of uncertainty. आपने कहा tough time is over. देखना ये है कि आने वाले एक हफ्ते में the third wave वो क्या impact लाती है, उसके लिए भी हम सबको मुहतात रहने की बहुत जरूरत है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही होनहार पाकिस्तानी से, और इन लोगों की काविशें और अचीवमेंट यकीनन हमारे लिए मशाल राह होती हैं, और जो हमें एक डोज ऑफ डीमोटिवेशन मिल चुका होता है, हम थोड़े परेशान हो जाते हैं रियलिटी को देख के, देयर अचीवमेंट एक्चुअली पिक अस अप. तो इनसे भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं आपसे बात कर रही हूँ लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद, बिकॉज मैं यहाँ पे आई थी फॉर द परेड, और परेड होगी थी रीस्केड्यूल, अब वो कल होगी. लेकिन मैं आपको बताती चलूँ व्हाई आई एम हियर. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान डे परेड हम लेके आए हैं आपके लिए द प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर, यानी पूरे पाकिस्तान से 100 से ज्यादा ऐसे हाई अचीवर्स, ऐसे अमेजिंग इंडिविजुअल्स जिनकी काविशें यकीनन आप उनको सुनकर, उनको देखकर दंग रह जाएंगे. जितनी भी मुश्किलें हों, but they have remained dedicated and consistent with their dreams. और हमने उनको खास तौर से प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर में बुलाया है, and I am so happy that I am having conversations with them. इसी काफी हमने भी ड्रेस रिहर्सल भी की, जो अगर आप देखना चाहें उसका जरा सा प्रीव्यू यू कैन गो टू माय सोशल मीडिया. आप उसको फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, and you will love the people who are there. पाकिस्तान के कोने कोने से, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, सिंध, पंजाब, एंड दीज पीपल आर अमेजिंग. आप में से कई लोगों ने दंगल देखी होगी, एंड यू टॉकिंग अबाउट 2 गर्ल्स हु आर इनटू, यू नो, उनको कुश्ती का शौक है और जबरदस्त वो दंगल करती हैं. बट दे 2 सिस्टर्स. डू यू नो पाकिस्तान में सुहेल सिस्टर्स आर एक्चुअली 4 सिस्टर्स, जो सभी 4 बहनें हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग में और वेट लिफ्टिंग में जबरदस्त झंडे गाड़े में भी ना सिर्फ वो नेशनल चैंपियंस हैं, इंटरनेशनल चैंपियंस हैं. इसके अलावा पाकिस्तान की पहली बॉम्ब डिस्पोजल फोर्स की फीमेल पर्सन हु जॉइंड द टीम, ना सिर्फ पाकिस्तान में वो नंबर 1 है, बल्कि एशिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती. ऐसे अनगिनत लोग, इन सबसे आपने मिलना है. कल जब सुबह परेड शुरू होगी, आई एम हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस विद देम लाइव फ्रॉम द शक्करपड़िया परेड ग्राउंड, तो आप देखना मत भूलिएगा, और उसमें से कुछ हम आपको यहाँ पे भी दिखाएंगे. लेकिन आज बड़ी अजीब सी बात यह है, मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, और मेरी एक बहुत ही जबरदस्त मेहमान है जिनसे हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में, जो मेरे स्टूडियो में मौजूद है. Now she is a professional squash player and sports activist. इन्होंने हाल ही में, she is the first South Asian athlete to have spoken at the Social Forum of United Nations Geneva for sports rights. और बड़ी अहम बातें इन्होंने की. इन्होंने कहा है कि क्यों बड़ी मुल्क ऐसे जिनकी आबादी बहुत बड़ी है, and therefore we must feel, और उन्होंने पास्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब वो क्वालिटी ऑफ एथलीट्स अगर नहीं आ रहे. तो आई सॉ हर टॉक, जिसके अंदर ये बकायदा शी इज अपीलिंग टू द ओलंपिक कमेटी कि आप क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते, आप क्यों नहीं उन मुल्कों से जिनके पास वसाइल कम हैं ये बात करते कि उनके यहाँ से अच्छे एथलीट्स, पावरफुल एथलीट्स क्यों नहीं आ रहे हैं. तो आइए मुलाकात करते हैं. शी इज अ वेरी पैशनेट पर्सन. इनका ताल्लुक लोअर डी. नोरीना शम्स हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम नोरीना. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. I saw your talk at the UN Geneva, और हम अपने नाज़रीन को भी वो दिखाने की कोशिश करेंगे. You were so passionate about it, और मुझे लग रहा था कि तमाम बातें आपके दिल के बहुत करीब. आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ जो सपोर्ट स्ट्रक्चर एक यंग एथलीट को, एक प्रोफेशनल एथलीट को मिलना चाहिए, उसमें कहाँ कमी है? बेसिकली जब मुझे उधर बुलाया गया था, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि मुझे पाकिस्तान के थ्रू नहीं बुलाया गया था, या मुझे पाकिस्तान मतलब इनविटेशन नहीं मिली थी कि मैं ऑफिशियली उधर जाऊं. मुझे बेसिकली यूएस के एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा भी कि आप जिनीवा आए और आप इन सारी बातों पे बात करें. सिंस आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स माई सेल्फ, बिलोंगिंग टू केपी या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो भी एथलीट्स होते हैं, उन सबको ये मसाइल सामने आते हैं. तो मेरे पास एक मौका था कि मैं सिर्फ अपने मसाइल को सामने ना रखूं. हेलो हाँ,
मेरे पास सिर्फ एक मौका ये था कि मैं सिर्फ अपने मसाइल के बारे में बात ना करूं. मुझे पता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं हर किसी के बारे में बात कर सकती हूँ. मुझे जब बताया गया कि आई एम द फर्स्ट साउथ एशियन, लाइक नॉट ओनली पाकिस्तानी, बट ये भी बताया कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे कई समाजी रवैये हैं. अच्छा, खुसूसन अगर मैंने पहले तो आपसे सवाल एथलीट के हवाले से किया नूरीना, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि व्हाट अबाउट गर्ल्स. आपका ताल्लुक लोअर दीज से है. एक आम तासुर ये है कि बड़ा ट्रेडिशनल माशरा है, बच्चियों को स्पोर्ट्स छोड़िए पढ़ाई की इजाजत नहीं मिलती. तो क्या आप समझती हैं इन समाजी रवैयों में तब्दीली आ रही है? बिल्कुल आ रही है. आई वुड से वन थिंग कि जिस इलाके से मैं हूँ अक्सर लोग उसके लिए कंजर्वेटिव का वर्ड यूज करते हैं, तो मैं उनको करेक्ट करती हूँ कि हमारा जो इलाका है या जितने भी इलाके सवात हो गया, चित्राल हो गए, ये सारे, आई कॉल देम लाइक अनअवेयर ऑफ देयर ओन पोटेंशियल. उनको अभी तक पता नहीं है कि उनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है और वो मसला ये है कि हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. फॉर एग्जांपल मुझे पहले डर लगता था कि मेरे इलाके के जो लोग हैं क्या पता नहीं वो खफा होंगे, वो खुश होंगे, मतलब मुझे स्पोर्ट्स में आके देख के, क्योंकि मैं उनकी हिस्ट्री में, मलाकन डिवीजन की हिस्ट्री में 500 सालों में पहली दफा एक लड़की स्पोर्ट्स में आई और मैं पहले डरती थी, जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों का रिएक्शन बहुत डिफरेंट है तो दैट एक्चुअली गेव मी काइंड ऑफ होप कि हाँ मेरे लोग मुझे लगता है कि हम अस्यूम कर लेते हैं. ये जो खौफ है ये हमारा अस्यूम खौफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके सामने कोई मिसाल नहीं थी. देयर इज नो अदर गर्ल जो कि मालाकंड से स्पोर्ट्स को परस्यू कर रही थी, तो आप एक अननोन टेरिटरी में जा रहे थे जहां पे आपको नहीं पता था कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आएगा. लेकिन दैट्स वेयर आवर इमेजिनेशन नीड्स टू बी फॉर द बेटरमेंट. मुझे ये बताएं कि अब आगे क्या इरादा है? डू यू वांट टू जस्ट परस्यू बीइंग अ प्लेयर, या आप अपने आप को एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट पोजिशन कर रहे हो? प्लान क्या है? माई प्लान इज डेफिनेटली टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि हमारे पास वो मिसालें मौजूद होनी चाहिए कि जो मुझसे कोई कम उम्र की लड़की मुझे देखे तो वो जो मेरे पास जो रोल मॉडल्स नहीं थे उसके पास वो मौजूद हो. एंड आई एम पैशनेट अबाउट इट कि मैं पाकिस्तान को स्क्वॉश के हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करूं या किसी और स्पोर्ट पे रिप्रेजेंट करूं. और एक्टिविज्म तो मैं कहूंगी कि हर एक इंसान जो भी प्रोफेशन उसमें वो हक के बारे में बात करते हैं तो आप एक्टिविस्ट बन जाते हो. तो अकेले सिर्फ स्पोर्ट्स का तो नहीं है. मेरी सारी जिंदगी ह्यूमन राइट्स पे गुजरी है सिंस माय मदर इज अ सिंगल पेरेंट. सो उनको देख के, फिर अपनी बहनों को देख के, लाइक मेरे पास एक मेल फिगर का ना होना और इस दुनिया में फिर आगे जाना, उनके हक के लिए बात करना, तो आई बिकेम एन एक्टिविस्ट जब मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा इसको एक्टिविज्म कहते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूंगी नूरीना कि जितने मसाइल की हम बात कर रहे हैं वो नॉट यूनिक टू पाकिस्तान. अभी हाल ही में हमने देखा कि स्टेट लेवल की एथलेटिक्स होती हैं जिसके अंदर एक खातून एथलीट ने पॉइंट आउट किया कि ये जो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन हो रहा है अमेरिका में, इसमें मर्द हजरात के लिए देखें कि कितनी सारी फैसिलिटीज हैं उनके पास. अगर वेट लिफ्टिंग का रूम है तो लोग, एंड इट वेंट वायरल, यानी विद इन अ डे इट गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज. दे वर पुश टू मेक अ रिएक्शन. उन्होंने पहले बड़ा सिंसी सा एक्सक्यूज दिया कि जी वहां पर जगह नहीं थी, फिर उन्होंने वो जगह दिखाई कि देखिए इतनी बड़ी जगह है जो खाली पड़ी है, उससे एक वेट का सेट पड़ा हुआ है. तो आई थिंक व्हेन पीपल कम आउट, खास तौर पर जब खवातीन एथलीट अपने हक की बात करती हैं, so situations and the facilities have to improve. Noorina, any last message you would like to give to the girls out there जिनको ये कह के रोक दिया जाता है कि तुम बहुत मैस्कुलिन हो जाओगी, मसल्स बन जाएंगे, रंग काला हो जाएगा, स्पोर्ट्स मत करो, उन बच्चियों को आपका क्या पैगाम होगा? मेरा पैगाम तो यही है कि यू डेफिनेटली डू नॉट लिसन टू पीपल, क्योंकि मैंने भी बहुत बातें सुनी. और जब आपने अमेरिकन एथलीट की बात की तो एक चीज मुझे ऐड करनी है कि केपी गवर्नमेंट ने, आई एम द फर्स्ट एवर एथलीट, मेल फीमेल बोथ, जो मैं उनके साथ बैठी हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए, एथलीट्स के लिए. और मेरा यही काम है कि मर्द औरत दोनों के लिए मैं स्टेडियम को सेफ बनाऊं. तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपकी आवाज गूंजती है जब आप बात करते हो और आपकी बात में वजन होता है. तो यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड ऑफ दिस थिंग कि अगर मैं बोलूं या मैं बाहर जाऊं तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं. एक ना एक दिन आपकी बात सुनी जाएगी, आपके एक्शंस को देखा जाएगा. आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा जब पानी, मतलब प्यास लगती है तो पानी आपके पास नहीं आता, आप पानी के पास जाते हो. सो दैट्स टू से कि यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ.
आपकी बाउंड्रीज हमेशा आपके दिमाग में होती है. That's all. बिल्कुल सही कह रही हैं नवीना. दिस इज सच अ पावरफुल एंड सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो जवाब हमेशा ना होगा. इट इज अमेजिंग टू हैव ब्रिलियंट एथलीट्स एंड स्ट्रॉन्ग वॉइसेस लाइक यू. ऑल द वेरी बेस्ट नवीना. इस वक्त हमें बढ़ना पड़ा एक छोटी तरफ. आप देखते रहिए आज पाकिस्तान. Welcome back after the break. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान and now it's time for our big discussion. Topic of debate क्या है? Usually हम बात करते हैं overall societal values की, लेकिन today I wanted to particularly focus on the young people. और खास तौर पे क्योंकि इतने दिन यहाँ पे भी जब मैं हूँ, मेरी इंटरेक्शन हो रही है प्राइड ऑफ पाकिस्तान से, जो बाय द वे आपने कल जरूर देखना है ड्यूरिंग द परेड. आप सुबह 7 बजे से टीवी लगा लीजिएगा, नेशनल स्टेट टेलीविजन पे आप ये बराह रास्त परेड देख रहे होंगे. और साथ ही जो पहली दफा होने जा रहा है प्राइड ऑफ पाकिस्तान का इंक्लोजर, जिसमें 100 से ज्यादा आपको ऐसे जबरदस्त पाकिस्तानी मिलेंगे जिनकी अचीवमेंट, जिनके बारे में जानकर यकीनन आपको बहुत खुशी होगी. अच्छा, उनसे भी मेरा सबसे कॉमन यही सवाल था कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है, उनके पैशन को कौन इग्नाइट करता है, क्योंकि स्ट्रगल सबके सामने आती होंगी, फेलियर सबके सामने आते हैं. तो हु आर दीज पीपल लुकिंग एट एज रोल मॉडल. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है, ये मैं इनसे कॉन्वर्सेशंस की बातें करी. यूजुअली व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, मैंने नोटिस किया कि कई बच्चे अपनी अपनी फील्ड में जिन लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं होते. दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द मोस्ट अकम्प्लिश्ड पर्सन इन देयर फील्ड, और हो सकता है वो पाकिस्तान से बाहर कोई शख्स हो. पहले ये एक्सेस नहीं थी. पहले या तो आप किताबों में पढ़ते थे, कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स से इंस्पायर हो जाते थे, लेकिन अब जिस तरह की रियल टाइम इंटरेक्शन, अगर आप आईफोन पे हैं तो आप क्लब हाउस के बारे में जानते होंगे. क्लब हाउस के थ्रू आप जिन लोगों को यू रियली सी देम एज रोल मॉडल्स, आप उनसे बाकायदा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं. सोशल मीडिया हैव कम टू योर रेस्क्यू. तो ये हमें एक ग्लोबल दुनिया से और ज्यादा कनेक्ट कर रहा है. योर इंस्पिरेशन डज नॉट नीड टू बी क्लोज टू यू. लेकिन वो पाकिस्तानी जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, ये एक्सपोजर नहीं है, वो सिर्फ रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं. और उनकी लाइफ में एम्स एंड गोल्स क्या हैं, ये भी बड़ा अहम है. आजकल के जमाने की यूथ को, जिसको मिलेनियल्स तो पुराने हो गए बेचारे, वो भी बुढ़े हो गए, ऑलमोस्ट दे हिटिंग 38, 35, तो हम उनको यूथ शुमार नहीं करते. लेकिन उनके बाद आने वाली जो जेन जी है, जेन जी बड़ी स्ट्रेंज है. उसको ज्यादा पैसों की फिक्र नहीं होती, उन्होंने घर नहीं बनाना. कई मुल्कों में, रियासतों में ये भी देखने में आ रहा है कि जेन जी शादी भी नहीं करना चाहती, वो खानदान से भी कसके रहना चाहती है, वो बहुत ही इंडिविजुअल लाइफ गुजार रही है. क्या ये खुशाइन बात है, या इसके आने वाले दिनों में क्या असरात हो सकते हैं, जरा इससे बात करते हैं. जबरदस्त पैनल में मुझे ज्वाइन किया हुआ है. देयर बी मोर पीपल विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली. लेकिन सबसे पहले जी, बोर्ड ऑफ मेंबर हैं आप बोर्ड ऑफ स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, इसके अलावा मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, CEO ऑफ नकीब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मौजम शहबाज. बहुत बहुत शुक्रिया मौजम हमें ज्वाइन करने का. एंड इन द कराची स्टूडियोज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, और लोगों की नफ्सियात एंड व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ, लोग किस तरह सोच रहे हैं, कि क्या इश्यूज हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, एस्पिरेशंस रिलेटेड, उससे बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है नीलम नाज. थैंक यू नीलम फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी दिस मॉर्निंग. नीलम, शुरुआत अगर आप ही से करें, हाउ ऑन द लेवल की कहा जाता है कि यूथफुलनेस में, नौजवानी में आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं. क्या आप समझती हैं कि आज के नौजवान, स्पेशली क्योंकि गुजरे हैं कोविड-19 से, स्पेशली क्योंकि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया से गुजर रहे हैं, उनका इंस्पिरेशन लेवल, उनका मोटिवेशन लेवल आप कैसा पाते हैं? सिद्रा, देखें, अगर हम एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो हर आने वाली जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से मुकाबले में दे गोइंग टू बी बेटर, राइट. अगर हम इंटेलेक्ट की बात करें, हम ग्रोथ की बात करें, तो नरिशमेंट के हवाले से वो बेहतर होंगी. तो अगर हम बात करें कि आज की जो यूथ है तो वो इक्विप्ड है बहुत सारी उन रिसोर्सेज से जो कि शायद हमारे पास नहीं थी व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दैट स्टेज. और ये सारी चीजें उन्हें हेल्प करती हैं टू बिकम मोर अवेयर अर्ली ऑन, राइट. सो ये एक एडवांटेज है, जिस तरह आपने भी मेंशन किया था, वेदर इट्स सोशल मीडिया एक्सेस या उन लोगों तक पहुंच पाना जिनसे वो इंस्पायर होना चाहते हैं, जिनकी स्टोरीज वो जानना चाहते हैं, उन रिसोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं. तो दे हैव ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल वेरी अर्ली ऑन, और ये जाहिर है शेप करता है उनकी काफी सारी चीजों को. द अदर थिंग दैट आई फील इज दैट कि सवालात करना,
they are curious, right? اگر ہم بچوں کو بہت ارلی ایج پہ آپشنز دیتے ہیں کہ وہ سوال پوچھ سکیں, اپنے کنفیوژنس کو کلیئر کر سکیں, اپنے ڈیسیجنس وہ خود لے سکیں, تو دیٹ از دا ٹینڈنسی جو بلڈ کرتی ہے اپنے ڈیسیجنس پہ کانفیڈنس لانے کی ابیلٹی. تو جتنا وہ کیوریس ہوتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, اتنا زیادہ وہ کلیئر ہوتے جاتے ہیں as to what exactly it is that they want to do. اچھا, یہ تو آپ نے سوالات کی بات کی, رول ماڈلس کی بات کی, وی آر اسپاٹ آن ود دیٹ. لیکن معظم اگر آج کی جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے ان سے اگر جوڑا جائے, کل ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنسی میں ہائر اسٹیٹ لیول کی ویلیڈیشن کی, ایکنالجمنٹ کی سیریمنی کی جاتی ہے. ہائیسٹ جو ہمارے سول ایوارڈ ہیں وہ اس سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. لیکن اف یو لک ایٹ آل دیز پیپل, ان کی پبلک ریزوننس اور ان کا جو پبلک اسٹیچر ہے, یعنی جو ان کی پاپولیرٹی کی کرنسی ہے, اس کو آپ کیسا بانٹتے ہیں؟ لوگوں میں ان کی مقبولیت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سدرا, یہ بڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے ان دی سینس کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کی پبلک میں بھی ریزوننس ہو. یہ کوئی اور پبلک میں ریزوننس ہونا یہ اس چیز کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں. آپ کے سامنے آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر کہ بہت ینگ ایج کے جو لوگ ہیں جن کی ایز سچ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, بٹ اسٹل دے ہیو لاٹ آف فالوورس. وہ کوئی اسٹوپیڈیٹی بھی کرتے ہیں تو دے گیٹ فالوورشپ. یہ آپ بہتر جانتی ہیں اس کو. تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور جن لوگوں کو آئی تھنک ایوارڈس دیے جا رہے ہیں پریزیڈنسی میں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی کچھ نہ کچھ اچیو کیا اپنی لائف میں. لوگ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, لیکن آئی تھنک کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان پہ ضرور نظر رکھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ان کو وہ ریکگنائز کر رہے ہیں. جیسے علی ستپارہ کو ریکگنائز کیا گیا یا کچھ وائس چانسلرس کو کیا گیا, تو یہ ٹریڈیشن ہے, یہ ان کی اکنالجمنٹ ہے ان کے کام کی. پبلک جانتی ہے یا نہیں جانتی, آئی تھنک یہ میٹر. بلکہ پبلک کو جاننا چاہیے, تبھی ان کو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ ایسے بھی جیمز, ایسے بھی نیشنل آئیکنز موجود ہیں. لیکن واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ موزم, کہ ان کو ایکنالج کرنے کا مقصد, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی کاوشوں سے لوگ انسپائر ہوں. یہ جس مقام تک اگر اپنی ریسرچ کو, اپنے کام کو لے کر آئے ہیں, تو پھر ان کے سکسیسرز بھی بنے, لوگ اور ان کاموں میں انٹرسٹ لیں. اس میں کیا لگتا ہے آپ کو بحیثیت ہم ایک قوم کے, ایک ریاست کے, ہم کتنے کامیاب ہیں؟ سیدھا جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی, میں اس کو اس سے کنیکٹ کروں گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے بہت سے جو رول ماڈلز ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. ہم اسٹیو جابس کی طرف دیکھتے ہیں, ہم بل گیٹس کی طرف دیکھتے ہیں, ایٹسیکٹرا. ہم انٹرنیشنل سیلیبریٹیز, چاہے وہ بزنس کی ہیں, انٹرپرینیورس کی ہیں, یا کسی بھی فیلڈ کی سیلیبریٹیز ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی, آئی تھنک دیٹ از ویری ریلیونٹ کہ ہمیں پاکستان کے جو جیمز ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اور اس میں ایک بات ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جب وہ زندہ ہوں انہیں تب کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم کئی لوگوں کو ان کے گزر جانے کے بعد ریکگنائز کرتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ ہم ان کو ان کی لائف میں ریکگنائز کریں, تاکہ لوگ ان کو مل سکیں, ان سے سیکھ سکیں, ان سے انسپریشن لے سکیں, ان سے مینٹورشپ لے سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, کیونکہ مینٹورنگ دیکھیں اللہ کی سنت ہے. ہم انبیاء نے اللہ سے مینٹورنگ لی. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی میرے خیال میں دیر از اے لارجر پلان. یہ صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو پوسٹیومسلی ان کے چلے جانے کے بعد ریکگنائز کیا جاتا ہے. اچھا, اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں ابرار الحق صاحب, مشہور سماجی کارکن بھی ہیں, پالیٹکس میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں, آف کورس فن کے حوالے سے بھی ان کی خدمات ہے. ابرار, آپ کیسے دیکھتے ہیں, یعنی اسٹیٹ کا ان سول ایوارڈز کو نوازنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ادراک ہو کہ ہمارے یہاں کس قسم کا کام ہو رہا ہے, کیسے کیسے نایاب لوگ موجود ہیں, اور پھر ان سے انسپائر ہو کے نوجوان نسل ان کے شروع کیے ہوئے کام کو آگے لے کر چلے. اس میں ہم منحصر قوم کتنے کامیاب ہیں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سدرا مجھے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. لیکن یہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں, یہ kind of symbolic recognition of the sacrifices that you make, your creative work, of yours. اچھا کام کرتے تو اچھی بات ہوئی کہ بعض اوقات پبلک لیول پہ پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو, اور اس کو اکنالج کیا جاتا ہے, طرح سے انسپائر کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ آپ کو بھی کیا جائے گا اگر آپ اس طرح کا کوئی بڑا کام کریں گے. اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہوئی کہ ہمیں ہیروز بنانے کی ضرورت ہے, اور ہیروز بنانے میں پورا معاشرہ کردار ادا کرتا ہے. اور معاشرے کا جو سب سے اہم ستون جسے ہم میڈیا کہتے ہیں, میڈیا اس حوالے سے ایک بڑا رول پلے کرتا ہے. بدقسمتی سے آپ نے صحیح فرمایا کہ جانے کے بعد ہم اکنالج کرتے ہیں. ستپارہ کی جو کام تھے
हमें पता ही नहीं था। असद पारा के नाम पे जब इंस्टीट्यूशन बनाने का मैंने फैसला किया, बहुत अप्रिसिएशन मिला, और मैंने उस हवाले से फिर जब टीम बनाई तो मुझे ऐसे पता चला कि ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की हुई है। फिर वो टीम जब मेरे साथ बैठी, उन्होंने अपने किस्से सुनाए, उनकी कुछ उंगलियां भी कटी हुई हैं, यानी उन्होंने इस मुल्क को दुनिया में वो करने के लिए इतनी एफर्ट्स की, कुर्बानियां दी, मगर मैं उनको जानता ही नहीं था। मैं तो इधर उधर अपने रेफरेंसेस से मैंने उनको ढूंढा। फिर मीडिया भी फॉर सम रीजन हम अपने हीरोज को रोकने की भी कोशिश कर, आई डोंट नो व्हाई। मैं आपको एक मिसाल दूं, आपको पता है कि पिछले जब ये पेंडेमिक आया तो मुझे रेड क्रिसेंट का ये प्लेटफॉर्म मिला। अगर मैंने पूरे 15 दिन के अंदर सिद्रा हमने एक कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल बना दिया, जो 2 पैसेज और 3 जोन फार्मूला के मुताबिक था, चाइनीज फार्मूला। ये पहला था। मेरा ख्वाब ये था कि पूरे पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट भी करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि 15 डेज में बना, और 120 बेड्स का फिर कंट्रीब्यूट भी करेगा। आप यकीन करें, किसी मीडिया पे कोई खबर आपको पता हो कि वो हॉस्पिटल बना, चाइना या किसी और मुल्क में ऐसा कोई कारनामा हो, पूरी दुनिया सर पे उठा लेते हैं लोग, उनका मीडिया भी उनको सपोर्ट करता है। और उसी अस्पताल में आपने तो एक जली हुई रोटी उस हॉस्पिटल में मिल गई किसी को, मीडिया वाले को, और उसको ऊपर तस्वीर बनवा के सोशल मीडिया पे पूरे ट्वीट्स कर दी कि रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल में जली हुई रोटियां दी जा रही, और वो सब ने शेयर किया। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, अगर मेरा काम करने को दिल चाह भी रहा था तो उसके बाद शायद मैं डीमोटिवेट मुझे होना, तो शुक्र अल्लाह का। अब यार आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते, और वही मैंने जितने लोगों से यहाँ पे गुफ्तगू की है, जितने हमारे अचीवर्स रहे हैं, ये मुश्किलात उनके रास्ते में आती है। और एब्सोल्युटली राइट कि हो सकता है कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हम बड़े नेगेटिव और बड़े बिटर हो चुके हैं, बट दैट नीड्स टू बी रेमेडी। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने आज के शो में करनी है। एक तो जैसे शुरू में बात हो रही थी कि हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि नौजवानों के जो रोल मॉडल्स हैं वो इंटरनेशनल हैं। जब आप इतना बड़ा डिस्कनेक्ट और खला देखते हैं, यानी एक तो वो आपके जैसे दिखते नहीं है, उनकी हो सकता है सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज आपसे नहीं मिलती, तो फिर आप उनको एज अ रोल मॉडल भी बड़े सिलेक्टिव अंदाज में लेते हैं। आप उतना ना फ्री होते हैं, ना इंडिपेंडेंट होते हैं, ना उसकी तरह आप बैगेज फ्री होते हैं। आपका एक पैर आपके अपने मुल्क में और एक पैर बाहर होता है, जिसकी वजह से आप मजीद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं। इस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है नेशनल हीरोज की एंड हु कैन बी एन इंस्पिरेशन टू द यंग पीपल इन पाकिस्तान। इवन ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की जा रही थी कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज या हीरोज को अपना हीरो तस्वर करना, अपना आइडियल तस्वर करना बुरा नहीं है, लेकिन जो कल्चरल क्लैशेस होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरह फिर अपने रोल मॉडल को भी उसके फुटस्टेप्स में नहीं चल पाते। यानी खवातीन की अगर बात की जाए, और अगर आप किसी बैरून मुल्क, किसी वेस्टर्न सोसाइटी की खातून को एज रोल मॉडल देखती हैं, उसकी सक्सेस को देखती हैं, उसके अचीवमेंट्स को देखती हैं, उसमें भी हम पिक एंड चूज कर रहे होते हैं। कई चीजों पे कह रहे होते हैं कि भाई ये तो हमारे माशरे में नहीं हो सकता, तो बस ठीक है, जितना पा लिया उतना काफी है। क्या कहेंगे इससे? बिल्कुल सिद्रा, आई एग्री विथ यू। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये है कि अगर आप कुछ इनोवेटिव करना चाह रहे होते हैं, या कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई ऐसे करियर या प्रोफेशन चूज करना चाह रहे होते हैं, कंसिडरिंग दैट पर्सन जो कि आपके मुल्क से बिलोंग नहीं करता, जब आप शुरू कर देते हैं उस पाथ पे, तब आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने फोर्स ही नहीं किए हुए हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जिस तरीके से अब्रार भी बात कर रहे थे, हमारी मीडिया का रोल, हमारे सोशल वैल्यूज का रोल, ये सारी वो चीजें होती हैं जो आपने प्रेडिक्ट नहीं की होती हैं, तो यू गिव अप वेरी इजीली, यू गेट डिसहार्टेंड वेरी इजीली अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो बाय गेटिंग टू नो योर ओन स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव हैड दीज द सेम चैलेंजेस, इट हेल्प्स यू बिकम मोर प्रिपेयर्ड, ताकि आपको पता है कि ये सारी रुकावटें आएंगी और आपने किस तरह रेजिलिएंट बनना है, किस तरीके से इनको डील करना है। यू लर्न दैट एज वेल अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेशंस एंड मोटिवेशंस दैट यू डिराइव। अच्छा, अकम्पलिशमेंट और वेल्थ, पैसे, वसाइल का आपस में क्या ताल्लुक है? अब्रार, ये मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाबी का तस्वुर है कि आपको नवाजा जाए, आपको बहुत सारा पैसा मिले। ये चीज भी लोगों को डिसहार्टन करती है कि कई दफा एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, उनको पता होता है कि उनका कोई सानी नहीं है उनके फील्ड में, अगर खास तौर पर वो कोई एकेडमिक फील्ड है, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई शुजात बहादुरी का मैदान है। लेकिन फिर जैसे हम अभी अली सत्तारा की बात कर रहे थे, उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई, इतनी मेहनत, इतनी करेज दिखाने के बाद
लेकिन जब इनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, यानी जो आखिरी मिशन पे अली सत्तारा गए, ही बिकेम द सपोर्टर ऑफ द 3 फॉरेन माउंटेनियर्स जो जा रहे थे, लेकिन अपने मुल्क में इस मिशन के लिए वो सपोर्ट, वो फंडिंग इकट्ठी नहीं कर पाए। ये तो दिल तोड़ता है हमारे नौजवानों का। जाहिर है, बिल्कुल आई एग्री विद यू। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है चीजें यहाँ, लोग इंडिविजुअली कोशिश करते हैं। आप किसी फील्ड को भी ले लें, आप म्यूजिक की फील्ड को ले लें, हमसाया मुल्क के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर लिखने वाला और होता है, कंपोजर और होता है, अरेंजर और होता है, ट्यून बनाने वाला और, बाकी उसके बाद फिर रिलीज करने वाले और। यहाँ पे सिंगर्स हैं, उनको खुद ही लिखना होता है, खुद ही बनाना, सारा कुछ वो खुद ही करते हैं। इसी तरह माउंटेनियर्स को ले लें, वो उनकी अपनी एफर्ट होती है इंडिविजुअल लेवल पे। इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर चीजें हों तो ज्यादा प्रोफेशनली भी चलती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होती है, और उसमें वो कैन फॉलो ग्लोबल ट्रेंड्स। आजकल जमाना है दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो करने का, तो वो हम नहीं कर पाते। और जैसे आपने जिक्र किया कि पैसे का उसमें जाहिर है कि इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है उस लेवल पे। अब फिर गवर्नमेंट भी जाहिर है कि सपोर्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे मसाइल ही जरा फर्क नोयत के हैं। लेकिन फिर भी आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा इस हवाले से है कि कम से कम हम उस तरफ सोचे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप हमेशा कोई ऐसा टॉपिक लेके आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये हमें ना जो आपस में लड़ाई वाले टॉपिक्स है ना, उनको छोड़कर ये वाले टॉपिक्स रखने चाहिए कि देखें दुनिया में जो टॉपिक्स होते हैं, अभी दुनिया में ये टॉपिक चल रहा है कि 20 साल बाद यहाँ पे शायद कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ी ना हो, डीजल वाली गाड़ी ना हो। तो पाकिस्तान 20 साल बाद कहाँ देखता है अपने आप को, और हमारी यूथ को कौन इंस्पायर कर रहा है कि उन्होंने वो नहीं बन सकते जो टेस्ला किसने बनाई है आजकल, वो इलॉन मस्क है, शायद इलॉन मस्क है, तो वो लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, वो हीरोज हैं, को एंटरप्रेन्योर्स हैं। कौन है पाकिस्तान का आने वाला इलॉन मस्क, कौन है बिल गेट्स। हमने आईटी वाली साइड पे क्या, और क्या कोई नौजवान जो ऐसा कर रहा है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है जहां रिसोर्सेज हो, जहां वो खुल के रिसर्च कर सके? एंड लाइकवाइज किसी और अबरार, आपका तो इतना तज्जिया है और आपकी इतनी इंटरेक्शन होती है विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आप ऑफ कोर्स आपकी अपनी अकम्पलिशमेंट्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं। मुझे बताएं कि आम तासुर ये है, और ये मेरे ख्याल में मौजूम और नीलम आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि पाकिस्तानी जहां इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारा कोई सानी नहीं होता, विल बी द बेस्ट डॉक्टर, द बेस्ट इंजीनियर, द बेस्ट आईटी पर्सन, लेकिन क्या हमारे माशरे में टीम वर्क को और साथ मिलकर काम करने को और सिनर्जाइज करने को, जिसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक मेरे ख्याल में खामी है, कमजोरी है। हम साथ मिलकर काम नहीं करते, हम एक दूसरे का ही कंपटीशन बन जाते हैं। ये हम कैसे दुरुस्त करें? मौजूद अगर ये पहले मैं आपकी तरफ लेके जाऊँ। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इसके ऊपर मेरा जाती तजुर्बा काफी सारा है। सिर्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंडिविजुअली हम लोग बहुत एक्सेल करते हैं, लेकिन टीम वर्क पे जब बात आती है तो वहां पे हमारे अपने तहफ्फुज़ात आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि जो रब का निज़ाम है, जो नेचर है, आप उसमें देखें कि मेरी आपकी लाइफ, अब्रार भाई की, नीलम की, हम सबका एक्सपीरियंस होगा, आप मेरी बात को इंडोर्स करेंगे कि जब भी आप दूसरों के लिए रास्ते खोलते हैं तो रब आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोलता है। आप जब दूसरों को हेल्प करते हैं ऊपर जाने के लिए, तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे तरीकों से नवाजता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता, वो आपका बाजू खुद पकड़ लेता है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, उसने बनाया हुआ है। ये मेंटोरिंग की मैंने पहले भी बात की, ये उसी का निज़ाम है। जब आप किसी को गाइड करते हैं, आप किसी को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और ये आई थिंक ये भी मैंने देखा है कि जब आप किसी का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी ग्रोथ में हर्डल्स आती हैं, चाहे आपको नजर आए या ना आए। आपके रास्ते भी उस तरह नेचर क्लोज करती है। तो हमें दिल बड़ा करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। दौर ही कोलैबोरेशन का। इस वक्त आप देखें बोइंग जो है, बोइंग के 1000 से ज्यादा पार्ट्स हैं। अब बोइंग वो खुद नहीं बनाता, वो 1000 डिफरेंट कंपनीज हैं जो बनाती हैं, वो एक जगह पे आते हैं और असेंबल होती है। दुनिया इस वक्त जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई है, और दुनिया ने दिल बड़ा कर लिया कि हमें कोलैबोरेट करके काम करना है। अब ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। बोइंग के 1000 पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट को जो स्पेशलाइज करता है इदारा, हमें उसको फोकस करना बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल अब्रार आपसे भी करना चाहूंगी। अब्रार, जब आप सहारा ट्रस्ट के फंड रेजिंग करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो इतना दर्दमंद दिल रखते हैं कि दे वांट टू कंट्रीब्यूट। इसी तरह हम इंटरनेशनल लोगों को देखते हैं, वो अफ्रीका में भी काम करना चाहते हैं, जहां जहां इंसानियत तकलीफ में उसको पैसा देना चाहते हैं। एक बड़ी तकलीफ से चीज मेरे सामने आई है, दिस इज बिकॉज मैं बहुत सारे फलाही इदारों के साथ मुंसलिक रही हूँ।
पाकिस्तान में जब हम फंड रेजिंग कर रहे हैं तो हम में एक तफरका बढ़ता चला जा रहा है। आप पंजाब में फंड रेजिंग करें तो वो कहते हैं कि जी नहीं, जो आप चीज बना रहे हैं तो वो बलूचिस्तान में है तो वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। ये बहुत कम लोगों की सोच है, लेकिन फिर भी ये सोच सराहियत कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिद्रा, इस हवाले से मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। देखिए, पाकिस्तानी कौम की जो जबरदस्त बात है वो यही है कि हम बड़े जनरस हैं। मैं पूरी दुनिया में फंड रेजिंग करता हूँ और दुनिया में भी जनरस लोग हैं। पाकिस्तानी इस कमाल है, हर घर तो एक एनजीओ है, चाहे वो किसी भी सूबे के अंदर हो। और यकीन करें, मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट नारोवाल में है। इस हवाले से अगर देखा जाए, मुझे इस चीज का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ा। तो मैं इस हवाले से एक्सपीरियंस यही है कि बहुत ही फोर्थकमिंग, बहुत ही जेनरस। अगर उनको एतबार आ जाए कि ये प्रोजेक्ट वाकई बना लेगा ये बंदा, इसने डिलीवर किया है। 2-3 चीजें होती हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इदारे में, एक को देखते हैं कौन कर रहा है और देखते हैं क्या कर चुका है। ये 3 चीजें अगर हमारे पास हैं तो एक इंस्टीट्यूशन बन भी जाता है और चल भी जाता है। इस हवाले से डेफिनेटली थोड़ा बहुत दूर होता है कि भाई हमारे यहाँ बनाओ, तुम बना दियो। वहां जेलसी भी होती है। हमारे प्रोफेसर साहब कहा करते थे, हमारे यहाँ जो बहुत सारी बीमारियां, एक बीमारी का वो साइकेट्रिस्ट डेविड गोल्डबर्ग, उस इतलात के बाद दुनिया में प्रोफेसर मलिक हुसैन मुबशर का नाम था, वो कहते थे जेलिसीमिया। और जब बढ़ता है तो वो जेलोसिस बन जाता है। तो वो जेलोसिस एक बीमारी से अगर हम दूर होंगे ना तो और साथ साथ बहुत सारे हमें फायदे हासिल होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, बिकॉज मुझे बताया जा रहा है, आपने जाना भी है, तो अब्रार मैसेज क्या देंगे वो यंगस्टर जो किसी भी वजह से, या तो उनका कोई प्लान फेल हुआ है, वैसे तो अंग्रेज कहता है फेल फास्ट, अच्छा है कि अगर जल्दी से आप नाकाम हो जाएं तो फिर अपने आप को यकजा करेंगे, कोई नया आइडिया होगा उसको लेके चलेंगे। लेकिन अगर कोई इस स्टेज में है कि दे फीलिंग डिप्रेस्ड, दे फीलिंग स्ट्रेस, आपका उनको क्या पैगाम होगा? बस मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कामयाबी मिलने लगती है ना तो उससे पहले वो मायूस करती है। उसका एक बड़ी कामयाबी की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, उसका एक अपना एटीट्यूड होता है कामयाबी का। वो कहती है मैं इतनी आसानी से नहीं मिलूंगी, पहले मैं तुम्हें फुल मायूस करूंगी कि ये काम ना करो अबरार, ये तुम्हारे पास का काम नहीं है, छोड़ दो, रहने दो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, ये नहीं होगा। ये जो फियर ऑफ होता है ना, फेलियर, ये निकाल दे। कभी आपकी एफर्ट नाकाम नहीं होगी। अल्लाह पे यकीन रखें और एक बात ज़हन में रखें, नफरत ना करें किसी से। नफरत की वजह जायज ही क्यों ना हो, वो अपने चेहरे पे जरूर आती है इंसान की। नफरत नहीं करनी किसी से। किसी का इतनी अच्छी बात की इन्होंने अभी, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि रास्ता रोकोगे ना किसी का, तुम्हारा भी रुक जाएगा। ये कोई कुदरत का निजाम है, जो बांटोगे ना वो ज्यादा मिलेगा। अगर आप सोचोगे ना इसको मैं अगर ले आऊंगा ये तो कल को मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, छोटी तरीन सोच, और ये आप अपना ही रास्ता रोक रहे हैं। याद रखें, जिसका जो बनता है उसको ले आओ वहां पे, अल्लाह आपको उससे आगे लेके जाएगा। सो ये अल्लाह पे ईमान और पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी। बस मेरा ये था। आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटिंग वर्ड्स बाय अब्रार। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। नीलम मौजम हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हमने ये बात करनी है कि अब आगे किस तरह जाएं। यानी ये रेगुलर डोज बड़ी जरूरत होती है, लेकिन कई लोग प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी आपसे मांग रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और इस्लामाबाद में ठंड बढ़ गई, जिसकी हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। वैसे कराची वाले बेचारे बदनाम रहते हैं कि हमें बारिश और ठंड कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, नीलम क्या कहेंगे इस बारे में कि ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि पीपल गेट डिजेक्टेड विद फेलियर, लेकिन खास तौर पे जो नई चीज, पहली दफा कोई इनोवेटिव चीज अगर आप कर रहे होते हैं और अगर आपकी उसकी कोई मिसाल आपको इर्द नहीं मिलती, तो हु विल शो यू द वे? यानी क्या हमारे लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 1% बिलीव इन अस, या आप बिल्कुल ही तनहा अपनी मंजिल तक जा सकते हैं? क्या कहती है साइकोलॉजी? देखिए सिद्धा, जब हम बात करते हैं हीरोज प्रोड्यूस करने की या कुछ बहुत क्रिएटिव करने की, तो उन सब में यही चीज होती है दैट दे डिड समथिंग दैट वाज नेवर डन बिफोर, और दे एडेड समथिंग न्यू जो कि पहले नहीं हुआ था, या किसी एक लेगेसी को वो आगे लेकर गए, राइट? सो दे थॉट बियॉन्ड द बाउंड्रीज, राइट? और जब भी हम कोई नया स्टेप लेने जाते हैं तो साइकोलॉजी सबसे पहले ये कहती है कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी,
फियर ऑफ अननोन जो है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा. अगर छोटी सी बात भी हो कि अगर आप एक ड्रेस सेंस से कंफर्टेबल हैं, अगर आप अपना ड्रेस सेंस भी चेंज करना चाह रहे हैं, यू वांट टू स्टाइल डिफरेंटली, तो आप बड़े अनश्योर से हो जाते हैं कि मैं सही लगूंगा नहीं लगूंगा. तो जब इतनी छोटी सी बात पे इंसान को घबराहट शुरू हो जाती है, तो वाइल मेकिंग अ मेजर लाइफ डिसीजन और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, सोशल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है. देखिए 3 लेयर्स होते हैं जी, 3 लेयर्स होते हैं जिसमें हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है. पहली बात तो ये खुद पे कॉन्फिडेंस, राइट, जो आपके चाइल्डहुड से आपको अपने जो मिशन को आप लेकर जा रहे हैं उस पे कितना भरोसा है, उससे आता है. द सेकेंड लेयर इज द फैमिली, जो आपके इंटीमेट लोग हैं, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो कितना आपको इनकरेज कर रहे हैं या कितना डिस्करेज कर रहे हैं, राइट. जर्नी में तो आपने पहुंचना ही है, लेकिन कितना जल्दी आप उसकी तरफ पहुंच सकते हैं, ये आपका जो इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है. या एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डूइंग समथिंग वेरी बिग, वेरी न्यू, तो जो इन्वायरमेंट से हमें फीडबैक आता है, राइट, वेदर आप किसी इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हैं, सोशल मीडिया से क्या फीडबैक आ रहा है, आपकी गवर्नमेंट जिस तरह आपको सराह रही है, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन हाउ लाइकली यू आर टू सक्सीड. वेरी ट्रू. मौसम, आपकी तरफ आना चाहूंगी. ये जो सवाल है कि लोग डिजेक्टेड भी फील करते हैं, कुछ इनोवेटिव करना हो तो मुश्किल होता है, इससे ही जुड़ेगी एक और बात होती है कि जितने अकम्पलिश्ड, हाईली अकम्पलिश्ड लोग हैं, खासतौर से अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, इट्स अ वेरी वेरी लोनली स्पॉट. जो सैक्रिफाइसेस, जो कुर्बानियां आपने दी हैं, बहुत सारे लोग उससे रिलेट नहीं करेंगे, आपको इल्जाम भी देंगे. कभी कभार आपके जो क्लोजेस्ट लोग होते हैं दे टर्न अगेंस्ट यू, यानी आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने बच्चे कहते हैं कि भाई आप तो अपने दिल में इतने मगन थे कि आपने हमें भी वक्त नहीं दिया. So is it true that every leader, every hero is perhaps going to have a very lonely life? सिद्रा, ये बात कुछ हद तक ठीक भी है और नहीं भी. इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप लीडरशिप पोजीशन पे जाते हैं तो आप वाकई ही अकेले होते हैं, क्योंकि आपकी तरह सोचने वाले लोग कम होते हैं, आपकी तरह एग्जीक्यूट करने वाले लोग कम होते हैं, आपका साथ देने वाले, आपको उस लेवल का मशवरा देने वाले भी लोग कम होते हैं. जैसे यौम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान डे के हवाले से, तो 2 तरह की शख्सियत हमने देखी. अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखने वाली शख्सियत थी. एग्जीक्यूटर जो थे वो कायद आज़म रहमतुल्लाह की शक्ल में थे. तो 2 शख्सियत थी, उनके कम्बिनेशन की वजह से पाकिस्तान बना. कितनी रिजेक्शंस आई, लेकिन उन दोनों ने उससे पीछे नहीं हटे. अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अपनी शायरी से मोटिवेट करते रहे और कायद आज़म रहमतुल्लाह जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन से लोगों को लेके चलते रहे, अपनी स्ट्रेटजी से लेके चलते रहे. तो लाइफ में रिजेक्शंस भी आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लीडर ने आगे चलते रहना होता है. और एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, आपने वे फॉरवर्ड की बात की थी, इसी चीज को लिंकअप करने के लिए मैं इसी को थोड़ा सा इसमें लीड ऑन देना चाहूंगी आपको कि एक तो बात हो रही है लोनलीनेस की, एक हमने ये भी राय देखी है, ना ब्रशिंग विद द ब्रॉड स्ट्रोक, लेकिन मौसम कई जो हमारे अचीवर्स हैं, हीरोज हैं, उनकी पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब क्यों होती है ना. अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात करते हैं, वेरी अलोन, हिज मैरिज डिड नॉट वर्क, उनकी बेटी उनके साथ नहीं आई, स्ट्रगल में हिस्सा नहीं थी. तो पर्सनल लाइफ की क्या वाकई सैक्रिफाइस देनी पड़ती है टू डू समथिंग बिग? मे बी टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू, बट जो मॉडर्न, अब देखें चीजें, मेंटोरिंग अवेलेबल है, जो मॉडर्न लीडरशिप है उसमें लोगों को क्लियरली बताया जाता है कि आपने 4-5 एरियाज के अंदर अपने आप को स्ट्रेंथन करना है. सक्सेस ये नहीं है कि आप प्रोफेशनली एक्सेल कर लें या फाइनेंशियली एक्सेल कर लें. आपने प्रोफेशनली भी एक्सेल करना है, फाइनेंशियली भी करना है, आपने इमोशनली भी अपने आप को स्टेबल रखना है. इमोशन से मुराद आपकी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है. फिर आपने फिजिकली भी फिट रहना है, आपने अपने आप को भी बेहतर रखना है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपने खाना अच्छा है, आपने एक्सरसाइज करनी है. फिर उसके बाद आ जाती है आपकी स्पिरिचुअलिटी. अगर ये 5 चीजों में आपका बैलेंस नहीं है, एक भी चीज खराब है, तो आप देखेंगे कि बहुत रिनाउंड लोग भी सुसाइड की तरफ चले जाते हैं या वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं. अगर एक चीज भी इनमें से डिस्टर्ब है, अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बाकी 4 चीजें बैलेंस है, तो भी काम खराब है. और अगर सारी चीजें बैलेंस है, इमोशनली अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं है, तो भी आपका वो सक्सेस जो है ना, उसको पैरामीटर उसमें बैठते नहीं. तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपको 5 एरियाज के अंदर बैलेंस बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. नीलम, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल? श्योर. देखें, इसमें यू वांट टू बी इनोवेटिव, आप कोई चीज क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर आप आउटस्टैंडिंग हैं, अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट द यूथ, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग. लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट भी हैं, इट इज अ गुड थिंग. डू नॉट बी प्राउड अबाउट इट.
yet. جو غرور اور جو گھمنڈ ہوتا ہے وہ شاید آپ کو اکیلےپن کی طرف زیادہ دھکیل دیتا ہے, رائٹ. تو ساتھ لے کر چلنا سب کو از سم تھنگ جو آپ کی ایموشنل ہیلتھ کو بیلنس کر سکتا ہے, اینڈ بینگ گراؤنڈیڈ ان یور سیلف, وہ آپ کو اگین اسپرچویلٹی کا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمبل رہیں, اور جس طرح ابھی ابرار بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کسی سے نفرت نہ کرے. وین یو لک فار ڈفرینسز یو ول فائنڈ مینی آف دیم, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے نیشنل ہیروز, ہمارے اچیورز اینڈ آئیکنز, ان کی وجہ سے ہمیں ہمت اور حوصلہ ملتا ہے. دے میک اس پراؤڈ, اور یہ جگمگاتے ستارے ہیں ہمارے. کل آپ نے بالکل نہیں بھولنا ہے جب پریڈ ہوگی پاکستان ڈے کی, اس میں ہم آپ کے لیے خصوصی طور پہ آئی ول بی ہوسٹنگ دا پرائڈ آف پاکستان انکلوجر میں جو زبردست ہمارے آئیکنز آئے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن. تو پلیز ٹیون ان ایٹ 7 AM. ابرار آپ کا, معظم, نیلم آپ کا آج کے پروگرام میں موجودگی کا بہت بہت شکریہ. یو میڈ سم پاورفل انپٹس ٹو دا کنورسیشن. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور آپ سب کل ڈو واچ دا پریڈ جو آپ لائیو آج نیوز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.